हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम एपी का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा प्रीवियस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को वो वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और उसमें जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे वो समझ में आए होंगे। एपी वैसे बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें हमारे जो 2-3 कंसेप्ट है अगर बच्चा उनको क्लियर कर लेता है तो उसको हम ईजिली कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, हमें एक ऐसा ईपी बनाना है जिसमें टैक्सी फेयर फॉर द ईच किलोमीटर इज 15 रुपीज। सो सॉल्यूशन, our first term is 15 kilometer and here our first term is 15 kilometer and the 8 rupees is for additional kilometer, means every kilometer the price of taxi fare increase by 8 rupees. So our D will be 8. So AP will be, as we know, AP formation is A plus D, A plus 2D and A plus 3D. So on we will put the value of A and D. What is this? A is 15 and 15 plus 8. Next 15 plus 2 multiply 8 and 15 plus 3 multiply 8. So our final AP will be 15. This is 23. This is 31 and this is 39. So this is our AP. Okay, next is the amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखेंगे। हमने क्या किया, हमारे पास एक सिलेंडर है, सभी ने आपने साइकिल वाला सिलेंडर देखा होगा। यहाँ से हमारा क्या है, आउटलेट। जब भी हम इसको पुश करते हैं तो क्या होता है, कुछ एयर हमारा साइकिल के अंदर चला जाता है। वही यहीं पर सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब हम पंप करते हैं तो टोटल का 1/4 एयर बाहर चला जाता है, मींस 1/4 ऑफ द टोटल एयर गेट्स रिमूव्ड आउट। सो लेट टोटल एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, लेट total air present in cylinder is 1 centimeter cube. Okay, and removal after each pump, this will be 1/4 of total या 1/4 of remaining, 1/4 of remaining. Okay, so let's draw an AP. Our first term is 1 and when we pump out 1/4 of the air gets removed, means 1 minus 1/4, 1/4 will be removed out, so remaining will be 3/4. So this is 3/4. Now our next total is 3/4. From the 3/4 air, 1/4 air get removed, that is 3/16 air removed into the air. This is removed air, and 3/4 multiply 3/4 is the present air. 3/4 and 3/4 whole square will be present air. So here our AP get forms. Our first term is A, and then our common difference is 3/4, because initially our total air is 1 and after that it will remain 3/4, and after again from one pump this will be remained of 3/4. Sir, okay. So in this question our total present air in a cylinder is 1 centimeter cube and removal after each pump is 1/4 of remaining. So here first term is A1 and D is
3/4. So after 1/4 removal, the total remaining present air is 3/4, and in second stroke, this is our first stroke, and this is second stroke. Okay, so after second stroke, removal will be this and remaining will be this. This is our remaining. As our first term will be 3/4, second term will be 3/4. Sorry, first term is 1, second term is 3/4, and third term is 3/4 का whole square. So let's check this is an AP या not. As we know that AP is determined by the common difference between the terms. So here D is A2 minus A1 slash D is A3 minus A2. So D will be 3/4 minus 1 is equal to minus 1/4, and D will be 3/4 whole square minus 3/4, as both the value of D are not same. So this is not an AP. Sir, next question is question number 3. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs for rupees 150 for the first meter and raises by rupees 50 for the each subsequent meter. हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम कोई कुआं खोद रहे हैं, कोई खड्डा खोद रहे हैं, जिसका जो फर्स्ट मीटर तक खोदने का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 150 रुपीज़, एंड एवरी इंक्रीज ऑफ मीटर द कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाई 50 रुपीज़. मतलब हम एक कुआं खोद रहे हैं, हमने किसी को लेबर को लगाया कि उसको कुआं खोदने के लिए, उसने क्या बोला कि मैं फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये लूँगा, 150 रुपीज़ लूँगा, एंड एवरी more 1 kilometer I will cost extra 50 rupees. So let's check this is an AP या not. So for first meter cost will be rupees 150. For additional 1 kilometer cost will be rupees 50. So our first term is 150 and common difference will be 50. So जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है, जैसे जो आपको मैंने बता रखा है, जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है, दिस इज A plus D, A plus 2D. तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज 150 plus 50, this is 150 plus 2 multiply 50. So our AP will be 200, 150, 200, and this is 150 plus 100, 250. So let's check this form an AP या not. Here first term is 150, second term is 200, third term is 250. So check the common difference between them. So D will be A2 minus A1, that is 200 minus 150 equal to 50. Now again check D is equal to A3 minus A1, that is third term minus second term. Our third term is 250 minus second term is 200. So from here common difference is D. So by calculating common difference on both sides, we can say that this forms an AP. So yes, this forms an AP. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? Next question is the amount of money in the account every year when 1000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. ये हमारा 8th क्लास का कंसेप्ट है. आप सभी लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी होगा, तो मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश या रिवाइज करा देता हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R upon 100 equal to time square. Okay, here CI is compound interest, P is principal amount, R is rate of interest, and T is time. So
here value of principal is 10,000 rupees, rate of interest is 8% and time is subsequent 1 2 dash dash dash. So we have to check this forms an AP या नोट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने 10,000 रुपये का कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया एट कंपाउंड इंटरेस्ट में, या किसी को हमने दे दिया, हमने 10,000 रुपये किसी को 8% के ब्याज से या इंटरेस्ट पर हमने किसी को दे दिया, तो वो बता रहा है कि क्या हमें एवरी ईयर जो अमाउंट मिलेगा, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा। लेट्स चेक इट। सो CI फॉर फर्स्ट ईयर, sorry, this will be amount. Okay, so amount for first year will be principal is 10,000 plus 1 plus 8 upon 100 की power 1. Principal for second year, sorry, amount for second year, कि amount second year में total कितना हो जाएगा। This is 10,000. Put the value of all the terms in formula. 1 plus R upon 100 की power 2. Again A3 is amount in third year, 3 year में अमाउंट कितना हो जाएगा। This is 10,000 plus 1 plus 8 upon 100 power 2. So solve this. This will be 10,000 108 upon 100. This will cancel out and this will be equal to 10800. From here A2 will be 10,000 108 upon 100, 108 upon 100. Okay, so from here 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, and this will be equal to we will calculate this. This is 11164. This is 11164. Okay, now calculate A3. A3 will be 10,000 108 and here power is 3 क्योंकि time is 3 year. So after 3 year amount will be 0 से 0 cancel and 0 से 0 cancel. So the calculation result will be 11164 multiply 108. Now we will check this will form AP या not. So our first term is 10,000, second term is 1080 and third term is our 11164. Now we can check are these terms following AP या not. How do we check AP? By using common difference, A2 minus A1 and A3 minus A2. So A2 is 10,800 minus 10,000, this will be 800. Now here A3 is 11164 minus 8, so it will be 64 and this will be 64. Here we will calculate 64 So here common difference is not same. Here our first common difference is 800 and second common difference is 364, only 364. So this is not AP. ये एक स्टार मार्क का क्वेश्चन है, CBSE में और स्टेट बोर्ड्स में हर साल ये पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा ट्रिकी सा रहता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक अटेंशन ऑन द क्वेश्चन।
our second question is write first four term of AP when first term is A and common difference is D. Our first question is A is 10, D is 10. So हमें क्या करना है, हमें AP का फर्स्ट फोर टर्म निकालना है. तो जैसे कि मैं बेसिक कंसेप्ट का वीडियो में बता चुका हूँ, मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ हम कैसे AP का टर्म्स निकालते हैं. तो सपोज दिस इज आवर सीरीज 1 2 3 4 डैश डैश. जो भी टर्म हमें सबसे पहले दिखता है उसको हम क्या बोल देंगे, A1 या A बोल देंगे, या उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म. ओके. सेकेंड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, A2 माइनस A1. A2 दिस इज आवर A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4. AP का सबसे जरूरी कंडीशन क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस, टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. सो 1 2 3 4 अपना एक सीरीज है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म A1 है या A है या इसको फर्स्ट टर्म बोल देते हैं. अब हमें चेक करना है कि D कैसे निकाल. D निकालने का तरीका क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट द how to find AP. On the basis of which we can find which sequence is following AP या which sequence is not following AP. So general term of AP क्या रहता है, जनरल टर्म अगर हमें कोई भी AP लिखना है तो ये उसका सीक्वेंस होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. इसी कंसेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. सबको समझ में आ गया? Let's solve the first question. Our first question is value of A is 10 and D is 10. A हमारा क्या रहता है, फर्स्ट टर्म, D is common difference. So जनरल टर्म ऑफ AP क्या रहता है, जनरल टर्म हमारा क्या रहता है A प्लस D, A प्लस 2D and A प्लस 3D. Okay. Our value of A is 10. So put the value of A प्लस D. अब हम क्या करेंगे, सबका एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे. 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 plus 3 into 10. So our AP will be 10, 10 plus 10, 20, 10 plus 20, 30 and 10 plus 40, 30 will be 40. This is our AP. So our first question get finished. Coming to next question. This formula will be used in all question. Okay. Next question is value of first term is -2 and common difference is 0. So AP, what will be our AP? So put the value of A is -2 and value of D is 0. So this will be -2 plus 0, -2, 2 multiply 0 and -2 plus 3 multiply 0. So this will be -2, -2 and -2 and -2. How easy is this question? Okay. So all the terms of AP will be same. Okay. Now our next question is value of A is 3 and D is -3. Means first term हमारा 4 है और common difference कितना है, -3. So AP कैसे बनेगा इसमें, put the value of A is 3, second term 4 minus value of D is -3. So 4 minus 3, 4 plus 2 into -3. Fourth term is 4 plus 2, 4 plus 3 into -3. So let's calculate this. First term is 4, second term will be 1 and third term will be 4 minus 6 and this will be 4 minus 3 3s are 9. So our final AP will be 4, 1, -2 and -5. So this is our AP. This is our answer. Okay. Coming to next question. Our next question is value of A is -1 and value of D is 1/2. So again we have to find the AP. Okay. तो अगेन पुट द वैल्यू. तो क्वेश्चन कितना इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, हमें सिर्फ जनरल टर्म ऑफ AP को ही याद करना है. अगर हमें जनरल टर्म ऑफ AP का बारे में पता है तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2 एंड -1 plus 3 into 1/2. So this will be -1, take LCM. So -1 plus 1/2,
take LCM, this is 2, this is minus 2 plus 1, and again this is minus 1, 2 से 2 cancel, this will be plus 1, it will be 0, and here minus 1 plus 3 by 2. To take LCM, LCM will be 2, and this will be minus 2 plus 3. So our AP, final AP will be minus 1, minus 2 plus 1 will be minus 1 by 2, this will be 0, and this will be 1 by 2. So our answer is this. Okay, this will form our AP. Our next and last question is value of A is minus 1.5 and value of D is minus 0.5. इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा ध्यान देना है. अगर हमें हमारा आफ्टर जनरल टर्म को लगाने के बाद जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें थोड़ा बच्चे मोस्टली गलती करते हैं. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ ए इज माइनस 1.5 प्लस वैल्यू ऑफ डी इज माइनस 0.5 minus 1.5 plus minus 0.5 multiply 2, okay, and A will be minus 1.5 plus 3 into minus 0.5. So our AP will be minus 1.5 and this will be minus 1.5 and this will be minus 1.5 plus minus 0.5, okay, and this will be minus 1.5 multiply 3 will be to 0.25, so this will be minus 75. So our final answer will be minus 1.5 minus 1.5 minus 1.25 minus 1.5 and this is minus 1.75 and our final answer will be minus 2. So this is our AP. So our next question is question number 3. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. हमारे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको बताया हाउ टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस. जो भी टर्म हमें सबसे पहले दिखता है वही क्या हमारा फर्स्ट टर्म. खत्म. जो भी फर्स्ट टर्म हमें पहले, जो भी टर्म हमें पहले दिखता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहले टर्म क्या दिख रहा है हमें? 3. तो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म. वैल्यू ऑफ ए इज 3. ओके. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने वीडियो में बताया था, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 या d इज इक्वल टू a3 माइनस a2. हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट हम दोनों मेथड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम चेक कर लेंगे क्या पता ये AP हो ही ना. तो दिस इज अवर एक्स्ट्रा केयर. ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. सो D निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2. सो A2 is and second term is 1 and first term is 3. So 1 minus 3 will be minus 2. Again we can check. A3 is minus 1, A3 is minus 1 minus A2 is 1. So from here again value of common difference in both the cases is same. So our in first question हमें क्या क्या बताना था? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना था. फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो सीरीज में हमें सबसे पहला टर्म दिखता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है. और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो आंसर विल बी अवर A is 3 and D will be minus 2. Answer. Okay. Coming to next question. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम. सबसे पहले में कौन सा टर्म दिख रहा है? -5. सो ए हमारा क्या हो गया? -5. और डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1. A2 कितना इसमें? -1. इसमें क्वेश्चन में हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है. ओके, एंड फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? -5. सो ये हमारा विंडो है ना. विंडो के बाहर नेगेटिव और अंदर नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव. सो -1 + 5 will be equal to 4. So our answer is first term is -5 and common difference is 4. Okay. Next question is, देखो अब आप ही बताओ इसका. सबसे पहले हमें क्या टर्म दिख रहा है? 1/3 दिख रहा है. सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म इज 1/3. और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म.
तो सेकंड टर्म क्या है हमारा 5/3 एंड फर्स्ट टर्म कितना हमारा 1/3। टेक एलसीएम 3 और 5 - 4 कितना होता है 4/3। देखो कितना इजी सवाल है, हलवा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आप सभी बताओ हमें सबसे पहले क्या टर्म दिख रहा है 0.6, नेक्स्ट टर्म 1.7। सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0.6 एंड डी कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो A2 इज -1.7 एंड 0.6, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1.2। सो आवर कॉमन डिफरेंस इज 1.2 एंड A इज 0.6। सर नंबर 4 स्टार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें चेक करना है ये सीरीज, ये हमारे जो नंबर दिए हुए हैं ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये AP फॉर्म करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना यानी D बताना है एंड 3 मोर टर्म्स बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2, 4, 8, 6, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर है मैंने इसमें बताया था किसी भी AP को, किसी भी सीरीज को कैसे चेक करते हैं वो AP है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं उसके कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस भी हम 2 बार चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, एक्स्ट्रा केयर के लिए। सो कॉमन डिफरेंस का हमारा फार्मूला क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इस कंसेप्ट के यूज के हम बता सकते हैं कि हमारा ये सीरीज AP है या नहीं है। तो हमारा सेकेंड टर्म कितना है, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म इज 2, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 2 एंड नेक्स्ट यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया 2 आया। अगेन वी चेक द कॉमन डिफरेंस हियर, थर्ड टर्म इज 8 एंड सेकेंड टर्म इज 4, सो हियर आवर कॉमन डिफरेंस इज D। अगर हम बोथ केस में देखते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। बट AP का क्या कंडीशन है, AP का कंडीशन ये है कि उसके सभी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो हमें क्या लेना दिस, सो दिस सीरीज विल नॉट फॉर्म AP। अगर ये AP फॉर्म नहीं कर रही तो कॉमन डिफरेंस तो हमें अलग अलग ही आ रहा है और 3 मोर टर्म्स तो बताने का कोई लॉजिक ही नहीं रहा। सो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे दिस सीरीज विल नॉट फॉर्म एन AP। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सीरीज है हमारा 3, 5/2, 3 एंड 7/2। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये हमारा AP फॉर्म कर रहा है या नहीं है, AP का सीरीज है या नहीं है। तो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो D कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने बताया था D को हम 2 बार चेक करेंगे। कोई भी सीरीज हम उसको 2 बार चेक करेंगे। हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। इसे बच्चों को नींद तो नहीं आ रही है। तो A2 क्या होगा हमारा 5/2 माइनस 2 एंड A3 कैसे निकालेंगे हम, A3 इज 3 माइनस 5/2। अब यहाँ पे हमें सभी मोस्टली बच्चे क्या करते हैं LCM में गलती करते हैं, तो हमें ध्यान से करना है इसको। हेयर LCM इज 2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 माइनस 2 2 जा 4, सो D विल भी कितना बच गया 5 माइनस 4 1/2। सो यहाँ से हमें D कितना मिला 1/2। अब वहाँ से चेक करते हैं हेयर LCM इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 1 5। सो यहाँ से मेरा D कितना मिला 6 माइनस 5 1/2। तो इन बोथ केसेस हमारा D क्या है सेम है। तो हम क्या कहेंगे यस, क्या बोलेंगे यस दिस इज एन AP। अब हमारा आगे वाला काम स्टार्ट होगा। आगे क्या बोला इसने, इफ दे फॉर्म AP फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया D कितना है 1/2। अब 3 मोर टर्म बताना हमें ना। तो हमारा कौन सा ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड
फोर्थ टर्म। तो हमें क्या बताना है, फिफ्थ टर्म बताना है, सिक्स टर्म एंड सेवंथ टर्म। इसको करते हैं। देखो फिफ्थ टर्म निकालने का एक लॉजिक था जो मैंने आपको बताया था, है ना, हमारा एक nth टर्म वाला क्वेश्चन था। जब भी हमें कोई टर्म निकालना है, जैसे मान लो a5 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, है ना। यहाँ 5 है तो इससे एक कम कर दो 4, यहाँ पर 6 है तो हम क्या लिख देंगे a प्लस 5d, यहाँ 7 है तो हम क्या कर देंगे, इससे एक कम a प्लस 6d। अब हमें कुछ नहीं करना, बट सिंपली क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। मैंने बताया था ए कैसे क्या होता है, ए हमारे जो हमें सबसे पहले दिखता है टर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, ए। तो ए का वैल्यू कितना है 2, और डी का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना आया था 1/2। अब पुट कर दो इसको, तो दिस इज 2 प्लस 4 इंटू 1/2, दिस इज 2 प्लस 5 इंटू 1/2, एंड दिस इज 2 प्लस 6 इंटू 1/2। सो दिस इज 2 प्लस 2 to 4, so this is 2 plus 2 is equal to 4, and this is 2 plus 5/2। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया 2, एलसीएम कितना आया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 plus 5, दिस विल बी 9/2 सर। एंड नेक्स्ट इज 2 3 जा 6, सो दिस इज 3 plus 2 is 5। सो हमारा a5 कितना आ गया, a5 हमारा है 4, ओके, एंड a6 कितना आया हमारा, a6 इज 9/2, एंड a7 कितना आया हमारा 5, ओके। दिस इज आवर आंसर, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, -1.5, -3.5, -5.2, -7.2। हमें क्या करना, सबसे पहले हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, -1.2, -3.2, -5.2, -7/2। सबसे पहले हम D चेक करेंगे। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 2 बार चेक करेंगे D। हमें भरोसा नहीं है ना, एग्जामिनर पे भरोसा नहीं है, क्या पता वो आगे वाले टर्म्स में कुछ कर दे, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा हमारा, -3.2 -1.2, माइनस माइनस प्लस, ये विंडो है ना, विंडो के बाहर हवा ठंडी हवा, बाहर अंदर ठंडी हवा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज -3.2 माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब -3.5 में इसको ऐड करो 1/2 को, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 0, 3 - 2 1, तो दिस विल बी -2.0। अब यहाँ से दोबारा चेक करेंगे, A3 कितना है, -5.2 -3.2, एंड हेयर विंडो अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -5.2 और +3.2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -5.2 एंड 3.2 को ऐड करो, तो 2 ये 0 और ये हो कितना बच गया हमारा -2। तो यहाँ देख क्या हम देखते हैं, D हमारे दोनों केसेस में क्या आया है, सेम आया है। तो हम क्या लिखेंगे, सो दिस इज एन AP, ये क्या है हमारी AP है, ओके। अगर हमारा AP है तो हमें क्या करना है, 3 मोर टर्म्स और फाइंड आउट करना है। 3 मोर टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, D हमारा क्या है -2, ओके, हम लिख लेते हैं इधर, D हमारा क्या है, भूल जाएंगे, है ना, छोटे बच्चे हैं। तो D क्या हमारा -2, तो हमें ये हमारा कौन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमें क्या बताना, 3 मोर टर्म, मतलब A5 बताना है, A6 बताना है और A7 बताना है। तो A5 कैसे निकालेंगे, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, एंड A7 इज इक्वल टू A प्लस, एक कम कर दो इसमें 6D, ओके। अब करना में कुछ नहीं है, सिंपली वैल्यू पुट करना है। A कितना है -1.2, D कितना है -2, सो 4 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पर -1.2 + 5 -1.2, कुछ करना ही नहीं है, हमें सिंपली A एंड D का वैल्यू पुट करना है। कितनी इजी सवाल है। आप सोच रहे हो कि सर आपको इजी लग रहे हैं, ये है ही इजी, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना, जो मैं बता रहा सब उसको फॉलो करते रहो और क्वेश्चन अपने आप बनेगा। तो ये क्या, यहाँ से क्या मिल गया हमें, -1.2, 2 4 जा 8, ओके, दिस इज इक्वल टू -9.2, यहाँ से क्या आया -1.2, और दिस इज विल बी -6, एंड दिस इज इक्वल टू -7.2।
नो 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 4 2 जा 8, ओके ओके सॉरी, यहाँ पर हमारा क्या आएगा -2 आएगा, तो दिस इज विल बी -10, ओके, एंड दिस इज विल बी -11.2, ओके। यहाँ भी मैंने गलती कर दिया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -1.5 और -12, तो कितना हुआ -13.2, ओके। दिस इज आवर आंसर। A5 कितना है हमारा 9.2, A6 हमारा 11.2 और A7 हमारा आ गया -13.2। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 इज -10, -6, -2 एंड 2। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये हमारा AP है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, D से। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, फिर हम चेक करेंगे, हमें विश्वास नहीं है एग्जामिनर पे, A3 माइनस A2, तो क्या होगा -6 माइनस -10, माइनस माइनस पॉजिटिव, 6 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू +4, ओके। नाउ अगेन चेक, A3 इज -2 and A2 is -6, so -2 माइनस माइनस प्लस, वाओ, यहाँ से भी हमारा D क्या आ गया, दोनों केस में सेम आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। D हमारा क्या आ गया, हम लिख लेते हैं इधर, D हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, A5 निकालना है हमें, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 मैंने बताया था, एक कम कर दो, A + 4D, A + 5D, A + 6D, ओके। अब क्या करना है, हमें सिंपली वैल्यू पुट करना है। हमारा A कितना है, A का वैल्यू कितना है, हमारा जो पहला टर्म होता है वही हमारा क्या होता है, A होता है -10, तो दिस इज -10 + 4 × 4, -10 + 5 × 4, -10 + 6 × 4, तो क्या होगा हमारा -10 + 16, -10 + 20, -10 + 24, यहाँ से हमारा कितना आया 6 10, दिस इज 14, ओके। सबको समझ में आ रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, बच्चे इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, 3 + 3√2, ध्यान से देखना इसको, 3 + 2√2, मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, एंड 3 + 3√2, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है, तो AP के लिए क्या करेंगे हम, वही हमारा 2 बार करेंगे, 2 बार चेक, हमें विश्वास नहीं है एग्जामिनर पे, है ना, आगे वाली सीरीज में वो कुछ भी कर सकता है। हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म हमारा कितना होगा 3 + √2, दिस इज 3, और फिर हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, दिस इज 3 + 3, ये वाला ना A3, 3 + 2√2। किसी बच्चों को नींद तो नहीं आ रही, ओके। ये क्या हो गया हमारा 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा D कितना बचा √2, ओके। अब यहाँ से भी चेक करेंगे, तो D कितना है यहाँ से 3 + 2√2 - 3 - √2, तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2√2 - √2, तो हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बच गया 2 और यहाँ बच गया 1, तो कितना बचा √2, तो हमारे दोनों केस में D कितना आ गया सेम, तो इसका मतलब दिस फॉर्म्स एन AP, ये हमारी क्या है, यस दिस इज AP, ये हमारी क्या है AP है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, मतलब A5 A6 और A7। कैसे निकालेंगे, A5 A6 और A7 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A5 मतलब A + 4D, A + 5D, A + 6D, तो A कितना हमारा 3 और D कितना आया था √2, सो 4 × √2, ये क्या हो जाएगा 3 + 5 × √2, D का वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिंपली, कुछ नहीं कर रहा मैं, 3 + 6 × √2, देखो कितना सिंपल है, हलवा सवाल है।
बच्चे ऐसे ही मैसेज कर रहे हैं सर एपी कराओ, एपी का 5.1 कराओ, लास्ट वाले सम आ नहीं रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 इज, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 0.2, 0.22 एंड 0.222। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो कैसे निकालेंगे, A3 कितना है, A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, ओके। और यहाँ से D कैसे निकालेंगे, 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। अब इसको देखो कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ एक 0 लगा देंगे, दोनों को क्या करेंगे माइनस 2, 2 में से 0 गया 2, दिस इज 0, दिस इज 0, तो हमारे पास D कितना बचा 0.02, ओके। इस कंसेप्ट में बच्चे काफ़ी गलती करते हैं कैलकुलेशन में। यहाँ हम फिर देखेंगे 0.222 में से हमें क्या करना है 0.22 घटाना है, तो हम एक 0 इधर लगा देंगे, ओके। तो 2 माइनस 0 2, 0 0 2, तो यहाँ से हमारा D कितना आया 0.002। क्या दोनों D सेम है? क्या सबको दोनों D सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे है ना, ये सेम है ही नहीं, कैसे दिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 0 -4 -8 और -12। तो फिर हम चेक करेंगे D क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो A2 कितना हमारा -4 और A1 0, तो यहाँ से हमारा D कितना आया -4। हम यहाँ से फिर चेक करते हैं, हमें एग्जामिनर पे भरोसा ही नहीं है, तो -8 -4, यहाँ से हमें D कितना मिला -8 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया -4। दोनों केस में हमारा क्या है D सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस इज AP। अब हमें क्या निकालना है, A5 A6 और A7, है ना, 1 2 3 4 4 टर्म में दिया हुआ है, मतलब हमें कौन सा निकालना है, A5 A6 और A7। अब जल्दी से बताओ A5 का फार्मूला क्या है, A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D। अब सिंपली क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। मतलब कितना इजी सवाल है, वैल्यू का A कितना है, वैल्यू ऑफ A इज 0। अब हमें सिर्फ D का वैल्यू पुट करना है, D कितना है -4, वैल्यू ऑफ A 0, D का वैल्यू कितना है -4, वैल्यू ऑफ A 0, D का वैल्यू कितना है -4, ओके। अब देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो कितने इजी सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 क्वेश्चन है ही नहीं, इतना इजी सवाल है, देखते ही बता देंगे बच्चे इसको। ये एक्सरसाइज के लायक ही सवाल नहीं है। देखो इसमें क्या दिख रहा है बच्चों को, हाँ हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, -1/2, सेकेंड टर्म भी -1/2, थर्ड टर्म भी और फोर्थ टर्म भी। तो हमें क्या है चेक करेंगे पहले, है ना, AP है या नहीं है। तो AP कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 और ये A3 माइनस A2। तो क्या होगा हमारा -1/2 माइनस -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, क्या बन गया ये 0। और ये कैसे निकालेंगे, A3 -1/2 माइनस -1/2 माइनस माइनस प्लस। तो फिर अगेन हमारा क्या आ गया, D क्या आ गया, दोनों केस में D हमारा सेम है। तो ये क्या होगा हमारा AP है। तो हमें क्या करना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। अब ये देखो हमारा सभी टर्म सेम है ना, तो हमारा A5 A6 और A7 भी क्या रहेगा -1/2 रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 1 3 9 27। अब हम चेक करेंगे ये हमारा AP है या नहीं है। तो AP कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1, वो तो हाथ को आदत हो गई है, बिना सोचे ही चल रहा है ना। तो A2 कितना हमारा 3, A1 1, दिस इज 2, D कितना आया 2, यहाँ से 9 माइनस 3, दिस इज 6। अरे D तो दोनों में सेम नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। सो ये क्या हमारा AP नहीं है। अगर AP ही नहीं है तो हमें 3 मोस्ट टर्म्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कितने इजी सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, A 2A 3A और क्या है 4A, है ना। तो कितने इजी सवाल है। D कैसे, सबसे पहले हम D निकालेंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो कैसे निकालें, बच्चे बोलते हैं सर मैं कहूँ AP नहीं आ रहा। A2 माइनस A1 तो मतलब 2A माइनस A, तो D कितना आया A, यहाँ से D चेक करो, 3A माइनस 2A तो कितना आया A, तो A का D का वैल्यू कितना आ गया A। दोनों केस में हमारा D क्या है, सेम है। अब हमें क्या निकालना है, A5 A6 और A7। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है A, ओके। तो A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। तो वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 4A, A प्लस 5A और A प्लस 6A। तो ये में क्या देगा 5A 6A और 7। कितने इजी से सवाल है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर लास्ट के 4 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। देखो बिल्कुल हलवा सवाल है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो ये तो बिल्कुल ही आसान है, A स्क्वायर A क्यूब और A की 4। हमारा काम क्या है, हमें सबसे पहले चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम D चेक करेंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A, तो यहाँ से हम क्या करेंगे A कॉमन लेंगे, तो A माइनस 1, तो D हमारा क्या हो गया A इंटू A माइनस 1। यहाँ से हम चेक करेंगे A क्यूब माइनस A स्क्वायर, फिर हम A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस 1। देखो क्या D दोनों केस में सेम है, दिख रहा है सेम, नहीं, इसका मतलब ये हमारा AP नहीं है। एक बच्चा मेरे पास आया, सर मुझे AP नहीं आता। मैं बोला अगर तुम बेसिक कंसेप्ट को लेके चलते हो तो पूरी 10th क्लास में सबसे इजी चैप्टर ही AP है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, √2 √8 √18 एंड √32। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, D चेक करेंगे, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। तो पुट करो वैल्यू, √8 माइनस √2 √18 माइनस √8। अब D चेक करते हैं इसमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2 इंटू √2। देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, तो √2 है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2√2। तो यहाँ से हमने क्या लिया, √2 बाहर लिया, तो क्या बच गया हमारे पास 2 माइनस 1, विच इज D का वैल्यू कितना आ गया √2। यहाँ से चेक करते हैं, तो √18 को क्या लिखेंगे हम, √18 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 3√2। तो क्या हो गया हमारा 3√2 और √2 क्या लिखा था हमने 2√2। तो फिर अगेन √2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2, तो क्या बच गया हमारे पास √2। दोनों केस में हमारा D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हमारे क्या है AP है। हमें क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है, A6 और A7। ये कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 4D A प्लस 5D और A प्लस 6D। हम क्या वैल्यू पुट करेंगे D का। अब D का वैल्यू कितना है √2, A का वैल्यू कितना है √2, दोनों सेम है, A भी √2 D भी √2। देखो कितना इजी सवाल है, वैल्यू पुट कर दो दोनों का, √2 5√2 6√2। अब सिंपली इनको ऐड कर दो, 4 + 1 5 5√2, 5 + 1 6√2, 6 + 1 7√2। देखो कितने इजी सवाल है।
अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा, √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, वही हमारा सबसे पहले चेक करेंगे डी, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। तो A2 कितना है, √6 माइनस √3, दिस इज D। और यहाँ से हमारा D कितना आ गया, √9 माइनस √6। √9 कितना होता है, 3 माइनस √6। यहाँ से कितना आया हमारा, इसको भी हम √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दोनों केस में हमारा AP, ये हमारा D और D दोनों केस में हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट AP, नॉट AP। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये भी बिल्कुल आसान है, बस हमें समझना है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। पता नहीं एग्जामिनर इतने इजी सवाल बना कैसे दिए। 7 स्क्वायर हमारा, अब देखो हम चेक करेंगे पहले ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये क्या करेगा, A2 माइनस A1, और ये क्या होगा हमारा A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से D का वैल्यू कितना आया, 8, और यहाँ से 25 माइनस 9, तो D का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 16। ओके, तो अब क्या, दोनों केस में हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज नॉट AP, नॉट AP। ओके, दिस इज नॉट AP। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले में क्या चेक करना है, D चेक करना है, A2 माइनस A1, यहाँ से A3 माइनस A2। तो क्या हो गया हमारा, A3 की 2 कितना है, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा 25 माइनस 1, तो D का वैल्यू कितना आया यहाँ से 24, और यहाँ से D का वैल्यू कितना आया 49 माइनस 25, तो D का वैल्यू यहाँ से कितना आया 24। अरे दोनों केस में सेम आ रहा है, ऐसे कैसे। यस, तो देखो दोनों केस में हमारा D सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा AP है, ये हमारा AP को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, A5 A6 और A7। देखो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। अब पुट करो वैल्यू, A कितना हमारा 1 और D कितना हमारा 24, तो 4 इंटू 24। सेम इसमें 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24, 24 5 जा 1 प्लस 96, 1 प्लस 120, 1 प्लस 144। तो हमारा आंसर कितना बनेगा फाइनल, A5 हमारा कितना होगा 97 होगा, A6 हमारा 121 होगा और A7 हमारा 145 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हम सभी बच्चों को ये हमारा AP का सीरीज़ समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी AP के सभी कंसेप्ट्स को बताने का कोशिश किया है। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक है, सभी बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आ पाएगा। और टू सपोर्ट मी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।